is it possible to be spiritually aligned while also focusing on your professional goals? People have a very big misconception about spirituality. You don't have to awaken your spirituality. You know, we are all born spiritual. Meet Meena Mahajan, fondly called Meema or Guruma. She gave up her background in forensic science 30 years ago to delve into the mystic world of spirituality. An ardent Shiv sadhak, a modern proponent of ancient wisdom and application in daily life, as the founder of Siddhi Philanthropic Foundation, she has devoted her entire life towards the well-being of humanity by teaching them spirituality with the context of modern-day life. So being an adult is like adulterating yourself. जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो हमें बोलते हैं अच्छा तुम खुश क्यों हो, कुछ हुआ है क्या, मतलब you need a reason to be happy. Otherwise you can't be happy. See, mother is where everything starts with, which is the first Ramayana. And you know, people start to Google and they try to say that, oh, Valmiki की थी या तुलसीदास जी की थी. No. पहली रामायण वो होती है जो आपकी माँ आपको सुनाती है. The mother, the Shakti, the feminine energy, which has a far longer relationship with you. The 9 months, there's a lot of magic happening inside the womb, which a woman is completely unaware of. So the power that we have as women, the power that we have as feminine is completely dormant now. There's just one thing you need to understand. You need to get back to your true self, your original self that you were born with. And this is spirituality. Spirituality is nothing to do with being material or not being material. That's your choice. Today we see the rich and the wealthy very spiritual. If a rich person can be spiritual, why can't a spiritual person be rich? I have noticed that women tend to feel a lot of guilt. थोड़ी सी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ वहाँ कुछ हो गया तो बड़ा गिल्ट हो जाता है. तो जब इतना सारा बैगेज है, उसके ऊपर से आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मदर भी निभानी है, बेटी भी निभानी है, बहन, फ्रेंड, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं. तो इतना सब होने के बाद स्पिरिचुअल आप कैसे रह सकते हैं? How do you ensure that you are your 100% in the material world while also aligning your own self with your own spirituality? So the answer to that is actually very simple. It's not complex. So good to see you. Thank you. And likewise. So I basically sent her the wrong address twice. I hope I don't end up asking you wrong questions. I hope I answer them correctly. You will answer wrong questions also correctly. My spiritual self just went out of my body. बैटरी किसको? बैटरी नहीं चाहिए. Roll sound. यार कचड़ पचड़ ही कर रहा है कुछ. Ready? Can you please roll? Very, very, very warm welcome to you on Candid Confessions with Shavi. Thank you, Shavi. So nice to be here. Thank you. Feelings are the same. आपसे मेरी बहुत टाइम से बात चल रही है कि आपको इनवाइट करना है and I'm so happy कि finally आप आए हो मुंबई और यहाँ पे आप आए हो. Very, very happy to have you here. Yes, I think your charm pulled me here. Thank you so much. सबसे पहले मैं आपसे एक बहुत बेसिक सवाल पूछना चाहती हूँ. आई डोंट नो इफ इट्स बेसिक, वो तो आप ही बताओगे कितना कॉम्प्लिकेटेड है. बट बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मुझे स्पिरिचुअलिटी को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को अवेकन करना है, एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए मुझे सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ों को त्याग कर देना होगा. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इज़ इट पॉसिबल टू बी स्पिरिचुअली अलाइंड वाइल ऑल्सो फोकसिंग ऑन योर प्रोफेशनल गोल्स? I think the first question itself is my favorite because people have a very big misconception about spirituality. You don't have to awaken your spirituality. You know, we are all born spiritual. But we train ourselves, we adulterate ourselves to be non-spiritual. How is that? So if you look at a small baby, you know, if you remember, you're a mother of 2, right? Yes. So if you remember your babies, one, I always say that a baby is a born yogi. If you see the kind of poses and the asanas that he does without any, you know, he's just there. Yeah. He's just happy. He's just there. And doesn't carry any sort of guilt or doesn't carry any sort of resentment or doesn't carry any sort of baggage. He's just there in the present. डांटोगे भी ना उसको तो थोड़े टाइम बाद he'll be fine. Absolutely. Until you start training the child. ये सही है, ये गलत है, फूल लाल होता है, स्काई ब्लू होता है, पेड़ हरा होता है. Till you start contaminating his freedom to imagine and visualize things, and then you say that अच्छा वो तुमसे ज़्यादा अच्छा लिख लेता है, and the PTMs are a
Baap re, when a parent walks into a kindergarten PTM and the teacher starts saying that, your child can't even do this and everybody in the class can write a A. And then the parent says कि तुम A भी नहीं लिख सकते हो. So like that you start feeding the child with so much outside information which is totally against his basic nature. So we are all born spiritual. We are all meant to be extremely happy. It is our state. Until then, we find reasons to be happy as we adulterate ourselves. So being an adult is like adulterating yourself. तो मुझे लगता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो हमें बोलते हैं अच्छा तुम खुश क्यों हो, कुछ हुआ है क्या, मतलब you need a reason to be happy. Otherwise you can't be happy. And that is where we have gone wrong. So spirituality is not something कि हम सीखें. Spirituality is our state we are born with. But sometimes in life where we are disconnected from this state and there are some nudges that happen in the form of some situations, incidents, बीमारी, relationship break हो गया, whatever, जो भी हमारे disappointments होते हैं, उसके बाद ना एक subtle nudge आता है हमारे पास that अब हमें कुछ भी logic समझ में नहीं आ रहा why this happened with me. The biggest question today मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? Why me? And there is no answer to this, Chavi. Nobody can tell you why this is happening with you. Everything that your friends will say, everything that people will say outside is just for some time. Just like, ठीक है, psychologically I can, ठीक है, हो गया मेरे साथ, कुछ पुराने जन्म का होगा. All kinds of things we say to ourselves until we just feel that कुछ भी ना is not addressing the cause. Everything is addressing the symptom. Okay. The outside. It's like taking a paracetamol every time you're having fever. And not going to the doctor and finding out why the fever is coming. So you would rather address the cause. Yeah. And for everything, the cause is only one, that you have separated yourself from your original true self. That you were born with. It was a gift. And we just got carried away. And here we are, messed up. Oh my God. आप ये जो कह रही हैं ना, मुझे आपने बच्चों के बारे में बोला, और माई यंगर वन इज स्टिल 6 एंड आई थिंक ही स्टिल इन दैट स्पिरिचुअल फेज ऑफ हिज. गुस्सा होता है, बड़ी क्यूटली गुस्सा होकर 2 मिनट में हक करता है. गुस्सा होता है तो प्यार भी मुझसे ही चाहिए होता है उसको. और आई फाइंड माई सेल्फ समटाइम्स सेइंग टू हिम दैट आई एम अपसेट विद यू बिकॉज यू डिड दिस. एंड जस्ट लाइक हाउ यू सेड कि हम गलती से उनको सिखा देते हैं विदाउट रियली रियलाइजिंग इट कि गुस्सा, आई मीन इन अ वे आई टीच हिम नाउ ना कि गुस्सा होना है, अपसेट होना है, किसी ने कुछ किया तो अभी बात नहीं करनी है, एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड ट्राइंग टू फोर्स दीज थिंग्स, दीज इमोशंस इनटू हिम व्हिच आर रियली नॉट देयर. एंड अभी मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि है, यू आर राइट, ये है, लेकिन कैसे इसको हम रोक सकते हैं? आई मीन आई डोंट नो इफ एज अडल्ट्स वी कैन स्टॉप इट, बट कैन वी स्टॉप इट एज पेरेंट्स? कैन आई स्टॉप इट एज अ मदर कि मेरा बच्चा जो है वो अपनी स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ अलाइंड रहे? See, mother is where everything starts with. I say something very profoundly, Chavi. I say that, I ask a question in my workshops and satsangs, and I say, which is the first Ramayana? And, people start to Google and they try to say that, oh, Valmiki ki thi ya Tulsidas ji ki thi. And then everybody is giving me these technical answers. And I'm like, no. पहली रामायण वो होती है जो आपकी माँ आपको सुनाती है. Which means the mother, the Shakti, the feminine energy, which has a far longer relationship with you. The 9 months, there's a lot of magic happening inside the womb, which a woman is completely unaware of. And when the child comes, in the normal perspective, if I say, if you tell your child, he's your father, he becomes the father. True. If you tell your child, this is Ram and this is Sita and this is what happened, and the Ram is a villain because he left his wife, that's what is Ramayan for the child. So the power that we have as women, the power that we have as feminine, is completely dormant now. And so whether it's your professional life or it's your own self understanding of your own self or it's your parenting, everything is all messed up.
And the only one way is, so you don't need to do separate courses to be a good parent and to be a good professional and then to be a good housewife. Or, no, there are no separate courses. There's just one thing you need to understand. You need to get back to your true self, your original self that you were born with. And this is spirituality. Spirituality is nothing to do with being material or not being material. That's your choice. You know, today we see the rich and the wealthy very spiritual. So if a rich person can be spiritual, why can't a spiritual person be rich? It's just the same thing. Or if I put it in a proper spiritual perspective, all the wealth in the world, all the wealth in the universe is energy. And all the spiritual people know how to harness that energy. So if you want to be abundant, if you want to be rich, if you want to be really whatever, your dream, luxury, whatever, you need to be spiritual, because you cannot harness that energy unless you understand the spiritual laws of the universe. How to understand these laws? क्या करना चाहिए डेली प्रैक्टिस में? लेट्स टॉक अबाउट वुमेन. यू आर टॉकिंग अबाउट द फेमिनिन एनर्जी. एक सवाल बिफोर यू आंसर क्या करना चाहिए से पहले एक और सवाल पूछती हूँ कि आई हैव नोटिस्ड दैट वुमेन टेंड टू फील अ लॉट ऑफ गिल्ट. आई पर्सनली ऑल्सो डू. मतलब थोड़ी सी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ वहाँ कुछ हो गया तो बड़ा गिल्ट हो जाता है कि अरे यार ये चीज़ भूल गई, ये रह गया. एंड देन आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू फॉरगिव माई सेल्फ. एंड आई थिंक मोस्ट वुमेन डू कि हमें लगता है कि नहीं ये तो गलती मेरी है, अब मैं अपने आप को खुद को कैसे माफ़ करूँ. तो जब इतना सारा बैगेज है उसके ऊपर से आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मदर भी निभानी है, बेटी भी निभानी है, बहन, फ्रेंड, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं. तो इतना सब होने के बाद स्पिरिचुअल आप कैसे रह सकते हैं? हाउ डू यू ensure that you are your 100% in the material world while also aligning your own self with your own spirituality? So the answer to that is actually very simple. It's not complex. It sounds very complex because we are looking at it from a material perspective. The lens through which you're looking is the lens of a mother, sister, daughter-in-law, daughter, and all of that. If you look at it from the spiritual lens, I'm saying that when your spiritual self is sorted, you can actually do all your roles and responsibilities with a lot of ease and effortlessness. So हम उल्टा चल रहे हैं. हमें जहाँ से शुरुआत करनी है हम उसको डेस्टिनेशन बना रहे हैं. हाँ. कि हमें स्पिरिचुअल होना है. है. So that's like you walk a path and then that's the destination. No, that's your start point. Like for example, when we talk of women and when we talk of men, spirituality, like usually people have a confusion that is spirituality different for men and women, and Yeah. should women be like more spiritual or less spiritual, or we've seen women being more religious than men. You know, men are more practical, and science has also proved enough of this, that a woman's brain and a man's brain are a little different. Even spirituality says that. So spirituality says that it's a universal principle. So there's no man and woman in spirituality. Okay. Because spirit, ritual. So if you break the word spirituality, it becomes ritual for the spirit. Correct? And spirit, soul, कुछ भी बोलो, आत्मा बोलो, वो asexual है. Okay. So there's an asexual soul. Then it gets a male body or a female body. So how I would explain this is, one, it is universal. It's the same. The principle, the basic principle is the same. But the experience and the expression of a man and a woman could be different spiritually. Okay, मतलब? Means you can be more intuitive Okay. and As your a woman. husband could be more disciplined and more logical. But it doesn't mean he's less spiritual and you're more spiritual. ओके. सो बेसिकली ये जो जेंडर डिफाइंड रोल्स हैं ये हमें जब बॉडी Yes. मिलती है उसके बाद डिफाइन होते उसके हैं. बाद define होते हैं. ओके. And that's where the concept of Shiv and Shakti comes. एक्सप्लेन दैट टू मी. If you've ever seen a picture where you see a half man and a half woman, हाँ. that's called Ardhanarishwar. ओके. So usually people will be like, you know, मुझे ना शिव जैसा husband चाहिए. You know, is that masculine? After the Yeah. serials and all that come, you know, the blue and या. the persona and everything. Yeah. But actually spirituality says that before you're looking for something outside,
the Ardhanarishwar is inside, which means you are half feminine and half masculine. You're not a half male and a half female. You're half masculine and half feminine. मतलब आपके अंदर दोनों एनर्जीज हैं. एनर्जीज हैं, एस्पेक्ट्स हैं. मतलब कि अगर आप एज अ वुमन आप घर को संवार रहे हो एंड यू आर डेकोरेटिंग थिंग्स अराउंड, पुटिंग फ्लावर्स हियर एंड देयर, यू आर यूजिंग योर फेमिनिन एनर्जी. And the day you're doing some weightlifting or you're handling some accounts, Yeah. you are using your masculine energy. And the same for a male body. So maybe your husband can cook, Yeah. okay, or he can just do something, taking care of the kids, etc. And at the same time do everything which is more masculine. But that doesn't make you more masculine and him more feminine. It's just that the masculine and feminine energies are present in all of us. They need to be balanced. So when the Ardhanarishwar is balanced, when these energies are balanced, then the life that we are leading is very effortless. There's no fight. So when you say balanced, can you define balance? मतलब as a woman, should my feminine energy be higher than masculine? Or it has to be at the same Absolutely. level. And if your feminine energies are more higher, that's when you start feeling that मैं तो लड़की हूँ, मैं तो ये नहीं कर सकती हूँ, प्रोटेक्शन करना तो मेरे हस्बैंड का काम है, पैसा कमाना तो उसका काम है, why am I doing all the hard labor, मैं बाहर भी जा रही हूँ, घर का भी, that's when the problem happens. And what happens when in a woman the masculine energy becomes too high? Well, she just takes care of everything. And then she becomes a little, maybe ego takes over, or maybe, you know, she becomes, sometimes I've seen women saying that I'm a man trapped in a woman's body. Yeah. You've seen that? Yeah. That's when, you know, हमारा कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस हैं कि यू नो हम सब कुछ कर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए भी सब कुछ कर रहे हैं, अपने शादी के बाद भी सब कुछ कर रहे हैं, द हस्बैंड इज नॉट डूइंग इनफ, यू नो, देन वी जस्ट टेक ऑन एंड टेक ओवर, एंड दैट्स व्हेन देयर इज अ डिस्टॉर्शन हियर, बिकॉज आफ्टर ऑल यू हैव अ फीमेल बॉडी. You want to feel like a woman. You want to be loved like a woman. There is femininity in you. And that's why every time spirituality talks of balance. Okay. It's like simply, if I even give you example medically, there's a left brain and a right brain. There's a Ida and Pingala, the two sides. One is the sun side and one is the moon side. When will you be in the best of your health? When both the sides are balanced. When both the hemispheres of the brain are balanced is when you will feel good. Correct? Same way, in yoga, we say there is a Ida and a Pingala. So your sun side and your moon side. Sun is your father, moon is your mother, sun is your strength, moon is your emotion. So when the moon side becomes too heavy is when you start being so emotional and you have your mood swings and etc. etc. And then it's a big hijack of hormones inside a woman's body. So the balance, the key is the yin and the yang need to be balanced. The key is the Ardhanarishwar needs to be in place. तो ये बैलेंस क्या अपने आप स्ट्राइक हो जाता है if your spiritual self is aligned? हाँ, because then you're looking out for certain processes and practices. You know, you are just actually attracting what you are wanting to be. Oh. You know, like for example, when you fall sick and आपको एलोपैथी सूट नहीं कर रही है, ऑटोमेटिकली आप सोचते हो ना, चलो होम्योपैथी ट्राई करो, नेचुरोपैथी ट्राई करो. Or then sometimes you're just, somebody just comes and says ki, suno, you just try yoga. Maybe this just helps. Ashtanga yoga can help. It's the want that you have from inside. Okay, that just starts manifesting in your life in different forms. But having said that, I think now is the time, is the right time where we need to reintroduce all these concepts in our homes very early on as mothers. ये क्या चीज़ें हैं जिनकी आप बात कर रहे हो? एक रूल बना दें घर में कि भाई उठने के बाद 2 घंटे तक कोई अपना फ़ोन नहीं टच करेगा. डिनर टाइम पे सबके फ़ोन कॉन्फिस्केट किए जाएंगे. रात को सोने के पहले हम लोग सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड करेंगे, सब लोग मिलके. हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर द थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर, कैसे शुक्राना करना है. ये जो छोटे छोटे संस्कार थे जो पहले हुआ करते थे, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे इतने. अब टेलीविज़न, नेटफ्लिक्स, बम्बार्ड हो गए हैं हम लोग. वी आर बम्बार्डेड विद सो मच. और ये फ़ोन और टेक्नोलॉजी के वजह से हमारे जीवन में अनजाने लोग बहुत ज़्यादा हैं. Yeah, exactly. अनजानी एनर्जीज़ हैं. You think phone के थ्रू ये energies हमें मिलती हैं? Absolutely.
देखो, इसको अगर मैं बहुत सिंपल सहज तरह से समझाऊं तो एक है साइंस और एक है टेक्नोलॉजी. अब वाईफाई का सिग्नल तो पहले भी होगा ना कहीं. तो कोई टेक्नोलॉजी आई, उसने वाईफाई को एकदम से सडनली इन्वेंट कर दिया, डिस्कवर किया, और फिर वो अब रेस्ट इज हिस्ट्री, हमें पता है. लेकिन साइंस तो हमेशा से रही होगी ना. हम टेक्नोलॉजी के साथ इतने अलाइन हो चुके हैं कि हम अपनी बॉडी की साइंस भूल चुके हैं. बॉडी इज सेल्फ जनरेटिंग, होम्योस्टेसिस प्रोसेस है हमारे मेडिसिन में, हमें पढ़ाया जाता था. बॉडी में खुद रीजेनरेट करने का, रिकवर करने का प्रोसेस है. That's how you have fought everything, and you are now experiencing a healthy phase of your life. So something in our body is saying कि ठीक है, हमारे RBCs हर 120 दिन में replenish हो जाते हैं. हमारा लिवर जो है सड़ भी जाए तो भी वापस अच्छा हो सकता है. So we have that intelligence in us. बट हमने क्या किया, बॉडी की इंटेलिजेंस को छोड़ दिया और टेक्नोलॉजी को ले आए, जो कि आजकल की जो इन्फॉर्मेशन हो गई या रैंडमनेस हो गई, एनीथिंग रैंडम वी कनेक्ट टू, बट वी आर नॉट कनेक्टिंग टू द साइंस ऑफ आवर बॉडी. हमारे शरीर में जो इतना मिरेकल है. अब देखिए 5 कोश होते हैं हमारे शरीर में, अन्नमय कोश. फर्स्ट इज फूड. अब अगर हम अपने घर में फूड ही इंट्रोड्यूस कर दें अच्छे से, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, एंड ये डिसिप्लिन होता था पहले. इफ़ यू जस्ट गो बैक 2 generations टू योर एंसेस्टर्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, दे हैड अ डिसिप्लिन ऑफ फूड. दे वुड नॉट ईट आफ्टर सनसेट. Yes, that's right. And today you would want to follow intermittent fasting. Yeah. You would want to follow Ozempic, but you would not say that okay, अब 5:30-6 हो गए, अब I will not have anything, because मेरा जो शरीर है वो सूर्य की साइकिल के साथ अलाइंड है, चंद्रमा की साइकिल के साथ अलाइंड नहीं है. सो पहले साइंस का मतलब होता था कि हम अपने शरीर को समझ रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, तभी तो हम किसी और को समझ पाएंगे. अब शिकायत क्या है, वो मुझे नहीं समझ रहा, मेरी लाइफ उसने हेल्प कर दी है, ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग माई नीड्स, माई वॉन्ट्स, माई रिक्वायरमेंट्स. कैसे हो सकता है ये? जब तक आप खुद को नहीं समझ रहे, जब तक आप अपने आप को, अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे, आपको किसी और के साथ कनेक्शन हो ही नहीं सकता है. इट्स अ पेन. व्हाट इज सफरिंग? मेरे हिसाब से चीज़ नहीं हो रही, तुम मेरे हिसाब से बिहेव नहीं कर रहे हो, दिस इज सफरिंग. Correct. लेकिन जब आप खुद से जुड़ जाते हो, जब आप अपनी यात्रा में होते हो, देयर इज नो सफरिंग. यू जस्ट स्माइलिंग इट थ्रू. यू जस्ट लाइक हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी हो सकता है. मतलब कुछ ऐसा ना, रिजेंटमेंट नहीं होती. इसको मैं एक स्टेट बोलती हूँ, संभाव, स्टेट ऑफ बैलेंस. निंदा स्तुति एक समान. कोई आपको गाली दे रहा है, संभाव. कोई आपकी प्रेज कर रहा है, संभाव. अब जिसने प्रेज की वो कल गाली कैसे दे सकता है, ये आपकी लाइफ का मुद्दा है. अब ये तो सफरिंग लाएगा ही लाएगा ना. सो टुडे आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है, कल आपको कोई ट्रोल भी कर सकता है. आपके अंदर संभाव होना चाहिए. यू हैव टू सेपरेट योर स्थिति एंड परिस्थिति. एक महिला के लिए, एक वुमन के लिए अपनी स्थिति और परिस्थिति को सेपरेट रखना बहुत ज़रूरी है. दैट्स हर शक्ति, दैट्स हर पावर. यू सी, कोई भी आप महापुरुष देखो, आप अहिल्याबाई आप देखो, या आप शिवाजी महाराज देखो, या विवेकानंद देखो, इनकी माँओं को स्टडी करो. स्टडी द मदर्स, and you will actually see that it's not that they had the best of lives. They lived really tough lives. Their husbands were not supportive. लेकिन उनके अंदर क्या power थी? That they could actually, bring up such souls. Right. That power has gone missing because we get nervous and anxious at the drop of a hat. आज किसी ने कुछ बोल दिया, attention नहीं मिली, बटन दबा गया कोई रिमोट का, और हमारा मूड ख़राब हो गया. दिनों दिन हमारा मूड ख़राब है. विक्टिमाइज होना बोलते हैं इसको. इसको बोलते हैं कि हम विक्टिम स्टेट में हैं, हम स्लेव हैं किसी के. हमने अपने रिमोट कंट्रोल्स बांटे हुए हैं. एक उसको दे दिया, एक उसको दे दिया, एक बॉस को दे दिया, एक बच्चों को दे दिया. बच्चे बटन दबा रहे हैं, हमारा मूड ख़राब हो रहा है. So, that is how we've been living life. You are absolutely right, and I can put myself as that person who's doing this. But अभी भी मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि मैं इसको रोकूं कैसे, स्थिति और परिस्थिति को अलग करूं कैसे. It's so difficult.
डिफ़िकल्ट लग रहा है बिकॉज बहुत लंबा आ चुके हैं हम अब, बहुत आगे जा चुके हैं, इसीलिए डिफ़िकल्ट लग रहा है. अब करना यह है, पॉज लेना है अपनी लाइफ में. वी हैव टू पॉज. अब अगर हमने पॉज नहीं लिया तो आगे का जो समय दिख रहा है ना, वो हैंडल ही नहीं कर पाएंगे हम. Everyone is sad, everyone is depressed. किसी की लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में रिश्तों की प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, खुश कोई भी नहीं है. या दैट्स ट्रू, बिकॉज खुश होने की भी हम वजह ढूंढ रहे हैं ना. हाँ, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल पाथ ये बताता है कि खुश होने में और सुखी होने में फ़र्क है. जो चीज़ें आज आपको खुशी दे रही हैं, हो सकता है वो सुख ना दें. वाओ, नाउ आई गेट इट. या गाड़ी ले ली, खुश हो खुश हो गए, गए. लेकिन गाड़ी में बैठने वाले आपको सुख देंगे. यस. This is spirituality, purpose. You have to be purpose driven all the time. You cannot be driven by any vice. कि मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है क्योंकि उससे बड़ी गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए. वो खुशी दे सकती है आपको, क्षण भर की खुशी, फिर वो गाड़ी को कोई मार देता है. आप जा रहे हैं और नई गाड़ी आपने निकाली शोरूम से और किसी ने उसको मार दिया. कहाँ गई आपकी खुशी? सुख is more permanent. Because सुख is something which is giving you a lot of contentment. संतोष आ रहा है आपको कि हाँ, कोई बात नहीं, maybe I got a Merc, I wanted a Rolls Royce, but I got a Merc, but my children will be very happy. That smile, as a parent, what you did, and enjoying that, and not just thinking in the Mercedes and saying, यार मैंने Mercedes क्यों ले ली, मतलब मुझे तो वो चाहिए थी, मेरा ड्रीम तो वो था. कंटेंटमेंट. पहले के लोगों में ना संतोष होता था, छवि, खुश रहते थे वो. ठीक है, जो है सो है, ठीक है, खुश रहते थे. कंपटीशन, जेलसी, इतना ज़्यादा कंपैरिजन, और ये बच्चे सुन रहे हैं. आप सोचो ना, पहले बातें क्या होती थी घर में? पेरेंट्स गेट अप, मदर टेक्स अ बाथ, इज इन द किचन प्रिपेयरिंग, मे बी तुलसी को जल दे दिया. एवरी हाउस इफ यू सी, तुलसी है. सो द चिल्ड्रन आर रजिस्टरिंग. कि एक वो मूवी आई थी शाहरुख खान की, आई फॉरगॉटन द नेम, जिसमें दिस काजोल इज सिंगिंग. हाँ, उठती है पूजा, एंड देन शाहरुख खान इज पुटिंग रुई इन हिज ईयर्स कि अरे फिर वो मतलब आरती शुरू हो गई. दैट्स हाउ वी यूज्ड टू गेट अप. What was it? कभी खुशी कभी गम? आई थिंक सो. Which one was it? कभी Yeah. खुशी कभी गम. दैट इज हाउ वी यूज्ड टू गेट अप. Yeah. कि कोई भजन चल रहा है या कोई मंत्र, या माँ के गजरे लगाते थे पहले. सो मेनी टाइम्स आई सी, वो मेमोरी है कि वो फूलों की खुशबू आ गई, या किचन में हलवा बन रहा है, उसकी खुशबू से बच्चे उठा करते थे ना. सो इट यूज्ड टू बी अ डिफरेंट एनर्जी इन द हाउस. आजकल जब बच्चे उठते हैं, भगड़ देख रहे हैं, माँ भाग रही है, फादर भाग रहे हैं, और क्या बातें हो रही हैं, हम क्या बात करते हैं? नथिंग इज एनरिचिंग. कोई स्पिरिचुअल टॉक नहीं है. और स्पिरिचुअल मतलब ऐसा नहीं सिर्फ भगवान की बातें. Yeah. आप अपने एम्स डिस्कस करिए, ड्रीम्स डिस्कस करिए, एम्बिशंस डिस्कस करिए, गोल्स डिस्कस करिए, बट थैंकफुल होना भी ज़रूरी है. लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं? किसी थर्ड इंसान के बारे में. आज उसके साथ ऐसा हो गया, आज उसने ऐसा बोल दिया, आज उसने ये खरीद लिया. हमारे पूरे घर की एनर्जी कंटामिनेट हो चुकी है. तो आपको क्या लगता है, मुझे ऐसा आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि इसका शायद एक बहुत बड़ा रीज़न हो गया है सोशल मीडिया. जैसे आप बोल रहे हैं कि 1000 लोग हमारी लाइफ में आ गए हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है हमसे. यस. So what is the difference that social media is making to us? What is the difference that whole pressure that we take on ourselves by looking at people on social media? What difference is that making? And मतलब अगर हम उसे cut off करें तो is it going to be a good thing? सी कट ऑफ नहीं करना है हमें किसी भी चीज़ को कट ऑफ नहीं करना है. Okay. वी आर लिविंग इन दीज टाइम्स वेयर टेक्नोलॉजी इज एट इट्स बेस्ट एंड विल बी इवन बेटर. कट ऑफ नहीं करना है, बट हमें वाइज यूज़ करना है. पहले भी टीवी होता था, Okay. राइट? तो ऐसा नहीं था कि हमारे पास पहले इतना कुछ नहीं था. जो था वो था, बट हर बार ना हम वाइज यूज़ करते थे. अब थोड़ा एक्सेसिव यूज़, मिस यूज़ हो गया है. एंड यू ऑल्सो नो, बेशक आप अपने इंस्टाग्राम पे 10 घंटे होते हो बिकॉज ऑफ
whatever आपका काम है. बट आपका बच्चा अगर 1 घंटे से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे है तो आपको थोड़ा डर लगता है कि he might just see unwanted content. Yeah. He might get exposed to something which he should not. You know, इतने tender brains and tender hearts are not used to absorbing so much. हर चीज़ उम्र के हिसाब से अच्छी लगती है. बच्चे को जानने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है. बट आजकल बच्चों को पता है, सब कुछ पता है. 7-year-olds know everything. Yeah. They know more than us. Yeah, absolutely. Now this is a problem. This is a red flag. तो जब मैं बोल रही हूँ कि दे दो फ़ोन, लेकिन एक डिसिप्लिन बना लो अपने घर का. अब लोग, लॉट ऑफ पीपल कम एंड टेल मी, माँ बच्चे ना कहना नहीं मान रहे हैं. मैं उनको बोलती हूँ कि बच्चों को कहना मानना सिखाना है तो उसके लिए एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा. एक फैमिली टाइम, फैमिली बॉन्ड बहुत ज़रूरी है. तो आप अगर फ़ोन पर हो तो आप अपने बच्चे को कैसे बोलोगे कि बेटा फ़ोन छोड़ दो. तो एक घर में एक रूल बना लो कि ये 2 घंटे, और वैसे भी साइंटिफिकली मैं बोलती हूँ कि सोने से पहले और उठने के बाद का जो 1-1.5 घंटा होता है वो अल्फा स्टेट में होता है हमारा ब्रेन. तो उस टाइम पे हमारा अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस हाईएस्ट पीक पे होता है. Oh. तो अब आप कोई बाहर की किताब पढ़ोगे, कोई वेस्टर्न ऑथर होगा और वो बोलेगा मिलियनेयर माइंडसेट, उठने के बाद आई ओनली डू दिस, तो वो हम मान जाएंगे. लेकिन यही चीज़ हमारे शास्त्र बोलते हैं, यही चीज़ हमारे पूर्वजों ने बोली, तो हमें मानने में प्रॉब्लम होती है. इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग गुड फॉर योर फैमिली एज अ वुमन, शक्ति हैज़ दिस अथॉरिटी दैट शी कैन मैनिफेस्ट सो मच फॉर हर फैमिली. Okay. सोने से पहले का 1-1.5 घंटा और उठने के बाद का 1-1.5 घंटा शुड बी द मोस्ट ब्यूटिफुल टाइम विथ योर फैमिली, जिसमें आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, अफर्मेशंस कर रहे हो, अच्छी अच्छी चीज़ें बात कर रहे हो, यू नो, एंड यू आर मेकिंग श्योर दैट ऑल द गॉडली एनर्जीज आर लिसनिंग एट दैट टाइम, और सब बोल रहे हैं तथास्तु 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 तथास्तु. दैट शुड बी द कन्विक्शन इन यू. एंड दिस इज़ वॉट इज़ कॉल्ड बीइंग अ वुमन एंड फेमिनिन. मतलब फेमिनिन एनर्जी इसी को बोलते हैं. मुझे तो यही समझ में आया इतने सालों में. शक्ति इज़ पावर, यू नो. एंड इफ़ आई वॉज टू जस्ट इवन मैंशन दिस, दैट स्पिरिचुअली ना ऋग्वेद में लिखा है हिरण्य गर्भ, द गोल्डन वूम्ब, द कॉस्मिक वूम्ब. एंड दिस वूम्ब हैज़ द शक्ति, द आदि शक्ति एनर्जी इन इट. सो इमेजिन, if you look at this and if you look at yourself, you also have a womb. But we don't know the power of the womb. It's not just for giving birth to children, it's for giving birth to ideas, opportunities, the most wonderful things in the world. So when the whole ब्रह्मांड started, जब पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हिरण्य गर्भ से हुई, जिसको हर फिलॉसफी मानती है. गब्रिएल का नाम सुना होगा ना आपने, गैब, दैट इज ऑल्सो गर्भ. हर एक फिलॉसफी ने फेमिनिन को एक ऐसी ऊर्जा माना है जो कि क्रिएट कर सकती है, अलाइन कर सकती है, नर्चर कर सकती है. लेकिन हमने अपनी पावर को इतना दबा दिया कि वो वूम्ब में अब एबनॉर्मैलिटीज हो गई हैं. सप्रेशन है, इमोशन सप्रेस हुए, हमारे वूम्ब में चले गए. कार्मिक इश्यूज आ गए, हमें पीसीओडी, पीसीओएस, ये दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आ गई. क्यों? बिकॉज हमने अपने इमोशंस को ठीक से अलाइन नहीं किया है. तो वो जो एक गोल्डन वूम्ब, कॉस्मिक वूम्ब हमें मिला था, यू नो, आई वुड नेवर एवर वांट टू बी बोर्न एज अ मैन. एंड देयर आर सो मेनी विमेन हु से कि आई विश आई वाज अ मैन. आप ये कैसे बोल सकते हो? यू डोंट नो व्हाट यू कैन डू एज अ वुमन. ये जो एक स्पेशल आपको कोई चीज़ मिली है, एक्सप्रेशन है आपके पास एक प्रजनन की शक्ति है, क्रिएटिविटी है आपके पास, एंड यू आर नॉट एबल टू यूज़ इट, एंड यू आर ब्लेमिंग द आउटर सर्कमस्टांसेस, द पीपल आउटसाइड, सेइंग बिचारी, मैं. तुम बिचारी नए हो, बिल्कुल नहीं हो तुम बिचारी. यू आर नॉट अ बिचारी, एंड डोंट एवर एंटरटेन दिस फॉर योर सेल्फ. कोई बोले ना हाय बिचारी, प्लीज से स्टॉप. Yeah. I'm not bichari. I have actually done that when people used to say that to me when I was fighting cancer. I used to say, no way. Don't use that word for me. I am nowhere a Exactly. bichari. You're not bichari. Nobody is. कोई भी नारी, कोई भी शक्ति बिचारी नहीं है. The only problem is उसको उसकी शक्ति का एहसास ही नहीं दिलाया गया है.
और एवरीथिंग इज टेकन अ रॉन्ग कॉनिटेशन ना, मतलब हमारी बॉडी का जो मैजिक है उसको बीमारी बना दिया. करेक्ट. अब मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आप हाँ. देखो, बीमारी बना दिया. Correct. अभी क्या है, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं तो उनको जब ये बोल रहे हैं कि भैया आपकी पीरियड्स चल रहे हैं या आपकी साइकिल आ गई है तो अब आप मंदिर नहीं जाओगे, अब आप ये नहीं, तो द वुमन फील्स व्हाट द हेल, मतलब ये क्या है, कोई मुझे बीमारी है क्या, तो वो रिबेल आ जाता है. हाँ. अब वो पूछती है, शी आस्क्स सम अदर, ऐसा क्यों है. अब माँ को पता नहीं, माँ ने बोला भाई मेरी माँ ने मुझे बोला, मैंने तुम्हें बता दिया. सो क्लैरिटी नहीं है. But what is the truth behind this? Because yes, I've also heard this a lot of times. The truth is for our own benefit. It's so spiritual and so when I got to know of it, and you know when you understand माँ कामाख्या, जहाँ उनकी योनि की पूजा होती है, I just understood ये क्या था. So the real spiritual reason for this is दैट जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में होते हैं, जब पीरियड चल रहा होता है, तो हमारी जो एनर्जी है वो नीचे जा रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो हम नीचे, हमारी सारी एनर्जी का जो फोकस है, ग्रेविटी यू वुड से, नीचे है. जब आप किसी भी सिद्ध जगह पर जाते हो, अब पुराने ज़माने में ना मंदिर ऐसे नहीं था कि हर सोसाइटी में मंदिर हैं. हर जगह जो स्पिरिचुअल होती है वहाँ की एनर्जी आपको अपलिफ्ट करती है. आप इसीलिए जाते हो ना किसी सिद्ध स्थान पे कि वहाँ बस बैठ जाओगे एंड समथिंग विल गेट अपलिफ्टेड. नाउ व्हेन योर एनर्जी, व्हेन योर बॉडी इज लाइक दिस एंड यू विजिट अ टेम्पल वेयर योर एनर्जी विल बी लाइक दिस, सो दिस इज कॉन्फ्लिक्टिंग. दिस विल बी वेरी अनहेल्दी फॉर योर बॉडी. द एनर्जी इज फ्लोइंग लाइक दिस, लेट इट फ्लो लाइक दिस. Okay, that is the reason. That is one spiritual reason. The other is, of course, that in the olden days, this was the only time when women could rest. So the women today are not doing more work, by the way. The women then were doing a lot of work. Right. उनको आटा भी खुद पीसना पड़ता था चक्की से, पानी भी लेने जाना पड़ता था, खेतों में भी जाती थी, घर का भी सब कुछ संभालती थी, खाना भी चूल्हे पे बनाती थी, और सारी एक्टिविटीज़ नीचे बैठ के होती थी. करेक्ट. सो उस समय एक महिला को प्रोटेक्ट करना, उसको थोड़ा रेस्ट देना, ये 4-5 दिन ठीक है, तुम थोड़ा आराम करो, अलग रहो, एंड देन जॉइंट फैमिलीज. यू नो, इफ यू हैड को सिस्टर्स, यू हैड योर सिस्टर इन लॉज डूइंग सो मच, यू नो, सो ठीक है, अभी उसको पीरियड चल रहा है, शी कैन रेस्ट. बट द स्पिरिचुअल रीजन इज दैट एनर्जीज इम्बैलेंस नहीं होनी चाहिए. यू शुड बी देयर, है ना, क्योंकि ये एक धर्म है, इसको हम एक धर्म से जोड़ते हैं. तो आप मासिक धर्म से हो. हाँ, राइट. इसको धर्म का नाम, अगर धर्म खराब होता तो हम इसको ऐसे क्यों बोलते. तो आपके मासिक धर्म जब होता है तो यू आर वर्शिपिंग योर फेमिनिटी. ओके. इट्स अ टाइम टू वर्शिप योर फेमिनिटी. मेक्स परफेक्ट सेंस. यस. अब हम अगर बताएंगे नहीं ये वाले रीजंस, तो ऑब्वियसली जो आज यंग बच्चियां हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनको लगेगा कि यार हमें अलग कर दिया, आई डोंट बिलीव इन दिस, ये सब. सो दैट्स व्हेन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. सो आप धर्म की जो बात कर रहे हो, मुझे बताइए धर्म एक्चुअली क्या होता है. नेचुरल लॉ, जैसा नेचर ने बनाया बिल्कुल वैसा ही. सो एज अ वुमन मेरा धर्म क्या है? नर्चर, करुणा, पालना, संभालना, वात्सल्य, एवरीथिंग विच इज़ नेचुरल टू अ शक्ति. आप देखो वात्सल्य, करुणा कितना नेचुरल है. आज आप बाहर जाइए, कहीं भी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओ, आप वहाँ पे एक 3 साल की बच्ची अपने 9 महीने के भाई को उठा के घूम रही होगी. उसको किसी ने बोला नहीं है. नेचर, दैट्स हर नेचर, शी इज शक्ति. तो उसके हृदय में वात्सल्य है. सो वी मस्ट मेक दिस आवर स्ट्रेंथ. इसको वीकनेस नहीं हमें बनाना है, इसको हमें स्ट्रेंथ बनाना है. लेकिन वो स्ट्रेंथ तभी बनेगा जब हमें अपने बारे में क्लैरिटी होगी. वी शुड नॉट फील यूज्ड एंड मिसयूज्ड एंड ओवरयूज्ड. Yeah, so used and misused and overused is something that a lot of women feel nowadays. Yeah. Okay. Let's talk a bit about women who are actually going through abuse in relationships. तो उनका धर्म भी यही है, right? To nurture the family. absolutely. लेकिन अगर
ऐसी रिलेशनशिप में कोई है, तो क्या ये सही है कि वो वही चीज़ कंटिन्यू करे जो उसका धर्म है, या इज इट समथिंग डिफरेंट इन हर केस? Many cases ना, because abuse is also different stages, हाँ. physical, mental, emotional, बहुत सारी चीज़ें. spiritual abuse भी होती है कि आप कुछ करना चाह रहे हो, आपका हस्बैंड आपको रोक रहा है. बहुत सारे केसेस हैं. और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एज अ शक्ति अगर आपको ये बोला है कि आपका नेचर इज़ करुणा एंड वात्सल्य एंड पालना एंड, ऐसा नहीं है दैट यू हैव टू टेक एवरीथिंग. यहाँ पर एक चीज़ आती है जिसको मैं बोलती हूँ सेल्फ प्रेजर्वेशन इंस्टिंक्ट. हमें अपने आप को प्रिजर्व करना आना चाहिए. वी हैव टू ड्रॉ द लाइन एंड देयर इज नो टिप टोइंग इन दिस लाइन. Whoever you are, you're a homemaker, you're a big CEO, कुछ भी हो आप, actress हो, जो there is no tiptoe here. And this is your self-preservation instinct. आपने देखा था जब सीता मैया लंका में थी, तो जब रावण उनके पास आने लगते हैं, so she picks up a blade of grass. Yeah. And she says, यहाँ के आगे मत आना. What was that? Her self-preservation instinct. That it doesn't matter, I could be here. And it's not about Ram also, कि वो मुझे आएंगे बचाने, नहीं आएंगे. It was not about that. It was about her. It was about her chastity. It was about her purity. तो उनको अपना धर्म पता था उस समय. तो that one blade of grass, and Ravan got scared. He said, इससे पंगा नहीं लेना है मुझे. You understand? This is what we need to develop in ourselves. And this is spiritual actually. ये जो स्ट्रेंथ आपको मिलती है ना, ये किसी मोटिवेशन से नहीं मिलती है. मोटिवेशन आप जाओगे, आपका फ्रेंड आपको कुछ बोल देगा, फिर कोई सिचुएशन आएगी, फिर आप फुस, है ना, देन इट विल जस्ट बी द सेम विशियस साइकिल. ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, इसको कल्टिवेट करना पड़ता है. यू हैव टू लिटरली वर्शिप योर सेल्फ एज फेमिनिन. यू हैव टू वर्शिप योर बॉडी. यू कैन नॉट अब्यूज योर बॉडी. You cannot let anybody abuse your body. और ये आप चिल्ला के नहीं कर सकते हो. आपके अंदर जब एक स्पिरिचुअल ऊर्जा होती है ना, तो कोई मेस नहीं करता है आपसे. People think 10 times to say something. Believe me, and I'm saying this because I mean it, because I've experienced it. I am smiling with such a, like, from year to year, because I have also experienced it, and I've often felt कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं. Why do people say that about me? Yes, that is what we call the confidence. That's your presence. That's the charm that a female carries, you know. And we always say, मतलब, why are we shy of our charm and presence and femininity? We are not in the best of our feminine roles to impress a man. You know, मतलब मैं तो बोलती हूँ कई बार कि भैया तुम सज रही हो, संवर रही हो, अपने लिए करो ना. हाँ, exactly. हस्बैंड ने नोटिस नहीं किया. It's fine. You are beautiful. You know, sometimes ठीक है, मतलब you must demand compliments and all, but actually this is about you. किसी के बारे में नहीं है ये. Yeah, why the external validation? Exactly. All the time validation चाहिए. मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, और फिर ये validation नहीं मिली तो फिर बीमारी लग गई, है ना. 50-60 साल के होके हम बोल रहे हैं, अरे मैंने कितना किया अपनी फैमिली के लिए, मुझे किसी ने प्यार नहीं दिया, किसी ने रिस्पेक्ट नहीं दी, मैंने तो दिन रात एक कर दिए. And that's why women have arthritis, by the way. Enough research I've done all these years about psychosomatic illnesses and neuroplasticity. Oh, this is related to the lack of appreciation? Lack of appreciation, resentments, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पूछता नहीं है, you know, ये सब. Wow. तो आप देखिए ना, lack of self love. मुझे कोई ना पूछे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. Because when you know that you are the creator yourself, तो आपको ये पता है कि जो आप क्रिएट कर रहे हो, तो ये अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, ये भी आप ही ने क्रिएट किया है. Yeah. So then you take responsibility. So then as a spiritual human, I would say, not a woman or a man, as a spiritual human, you're like यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे. मतलब जो मैं क्रिएट कर रही हूँ वो ही मुझे दिख रहा है आसपास. किसी ने मुझे तंग नहीं किया है. मैंने उस वाइब्रेशन को अट्रैक्ट किया अपने जीवन में, और अब मुझे अपनी ही वाइब्रेशन से प्रॉब्लम हो रही है.
सो मैं हमेशा बोलती हूँ गर्ल्स, हैंडल योर फियर्स, हैंडल योर इनसिक्योरिटीज़, क्योंकि अगर ये फियर्स को और इनसिक्योरिटीज़ को हैंडल नहीं किया ना तो कोई आएगा तुम्हारे जीवन में और तुम्हारा फियर वैलिडेट करेगा या और फिर तुम्हें और चोट पहुंचा के जाएगा और फिर तुम्हें और ज़्यादा तुम खड्डे में गिर जाओगे और तुम्हें फिर लगेगा अरे मेरे साथ तो यही हो रहा है, मेरे में कोई कमी है। कमी नहीं है, कैसे आदि शक्ति में उसके अंश में कमी कैसे हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। Now, I feel that the universe has a way of teaching us the teachings that we have to learn. Yeah. And I think आप मेरी life में आई हैं with that very big क्या बोलते हैं, एक मकसद के साथ. क्योंकि मुझे जब से ever since I had cancer, I've been getting these exactly what you're saying. I've been getting these signals, but it's difficult to just put your finger on it. कि ये चीज़ ऐसी है, क्योंकि लाइक यू राइटली सेड कि हम बहुत आगे निकल आए हैं अपने आप को डाउट करने में और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में. तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग गया था कि जो मुझे ये फीलिंग्स हो रही हैं ये बहुत रिबेलियस हैं, ये नहीं होनी चाहिए. Why am I trying to prioritize myself? Why am I trying to not allow anybody else come into my safe space if I don't want? I felt कि शायद मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ. लेकिन आप अभी देखो, आप मुझे आके वो चीज़ फिर से अश्योरेंस रीअश्योर कर रहे हो कि वो चीज़ सही है और वो चीज़ इज़ एक्चुअली समथिंग दैट आई हैड फॉरगॉटन, एंड द कैंसर केम इनटू माय लाइफ टू सॉर्ट ऑफ bring me face to face with that reality which I had somewhere forgotten. Cancer came in your life because the divine plan was that you can fight it. अभी आपका मकसद बाकी है, अभी आपका पर्पस बाकी है. तो ये जो उस समय का जो पड़ाव था, जो भी फीलिंग्स हुए होंगे, आई डोंट वांट टू टच अपॉन दैट बिकॉज आई फील यूर स्ट्रॉन्ग. क्यों मुझे बात करनी है कि लोज क्या थे. अब अगर पीछे मुड़ के देखोगे ना, दैट विल बी द मोस्ट ब्यूटिफुल कर्व ऑफ योर लाइफ. Yeah. Yes. And I see that now. यस, क्योंकि अभी तो पर्पस बाकी है. सो ये सबके साथ होता है. whoever you feel is very successful or very whatever, उनका जीवन अगर आप देखोगे ना तो वो इन्हीं सिचुएशंस से गुजर के वो जीवन आया है. क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आपकी शक्ति का एहसास, अब जामवंत जी ने भी शक्ति मतलब हर कोई आता है, भगवान को भी आता है कोई दिखाने की, हनुमान जी तुम्हारे पास इतनी शक्ति है ना, राइज, अष्ट सिद्धि नवनिधि हैं तुम्हारे पास, राइज अप. हमें भी कोई ना कोई इंसिडेंट, कोई ना कोई सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में हमें ये बताने आते हैं कि तुम तो बहुत मीडियोकर लाइफ जी रही हो. ये क्या है, सुबह उठो, गो टू वर्क, कम बैक होम, ये क्या लाइफ है ना. पैसा भी कमा रही हो, सुंदर भी हो, सब कुछ है, लेकिन ये क्या लाइफ है, इसीलिए थोड़ी भेजा था तुम्हें. सो देन अ सिचुएशन कम्स, बिकॉज अब जिस युग में हम जी रहे हैं, जब तक वो सिचुएशन, ठोकर, बीमारी, रिश्ता टूट गया, ये सब नहीं होगा ना, तब तक हम जागेंगे नहीं. कंफर्ट जोन में रहना हमारी आदत हो चुकी है. तो फिर वो कोई ऐसा प्लान आता है, भगवान का कोई ऐसा मास्टर प्लान होता है, बोलते हैं ये क्या कर रही हो तुम, इसीलिए थोड़ी भेजा था तुम्हें, है ना. लाइक कृष्णा टेल्स अर्जुन, उठो पार्थ, गांडीव संभालो, हो गया अब तुम्हारा कंफर्ट जोन, रोना धोना सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया, अब उठो, लड़ो, चलो, आई एम विथ यू. दैट इज द ब्रेक थ्रू मोमेंट, दैट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ. ये पर्पस, I understand that I still don't understand what my destination is. I'm just feeling that कहीं तो जा रही हूँ मैं, ऐसी मुझे फीलिंग आती है. तो ये पर्पस कब समझ में आएगा? पर्पस आपके साथ ही है, वो रिवील हो रहा है धीरे धीरे. ओके. पर्पस आपके साथ हमेशा, हम वी आर बॉर्न विद द पर्पस, कभी हमें ढूंढना नहीं पड़ता है. बट हाँ, एक सिस्टम है भगवान का, एक सिस्टम है इस यूनिवर्स का कि वो रिवील होता है धीरे धीरे. जैसे जैसे हम सक्षम होते रहते हैं, वैसे वैसे वो रिवील होता है. सो जब आप उस लायक बन जाते हो कि अब आप नेक्स्ट पड़ाव पे जा सकते हो अपने पर्पस के साथ, हु नोज, द नेक्स्ट purpose of your life could be that actually through these podcasts you are making a true difference in the lives of people. I really And you hope so. might just receive some messages one day ki I was about to commit suicide and I stopped because मैंने आपका podcast सुना. That is your purpose, that is your achievement. That is actually the reason why I started the Exactly. podcast. And that's what happens. And I'm telling you from my experience. I mean, Chavi, I would not say a single thing that I have not experienced. मतलब वेद, उपनिषद, ये सब हो गया, but I feel that when your experience is so strong,
you are speaking sense, it's coming from the authentic source, but it's your experience, and your experience needs no validation. या ट्रू. बट एक चीज़ बताइए कि मतलब आई स्टिल फील कंफ्यूज्ड अबाउट द कमिटमेंट. धर्म की भी हमने बात की और हमने ड्राइंग अ लाइन की भी बात की, लेकिन हाउ इम्पोर्टेंट इज़ कमिटमेंट? ऐसा नहीं होता है कि अभी आपकी शादी हुई है किसी के साथ तो आपका जन्म जन्म का रिश्ता है, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट कमिटमेंट कि नहीं जो है मुझे निभाना है. Lot of women go through that, and lot of women continue to be in an abusive, any kind of abuse in the relationship because they feel कि नहीं मेरा commitment है इसके साथ, या relationship, not just husband, maybe कोई और relationship. What is the value of commitment? देखो इसको भी स्पिरिचुअली हैंडल करते हैं हम क्वेश्चन को, बिकॉज ना लाइफ अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन. लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि जो हमें भी बताया ना कि सुनो तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हारी उस घर से अर्थी ही निकलनी चाहिए. हाँ. एक्चुअली Correct. इवन इन आवर जनरेशन दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू बी टोल्ड कि मुड़ के मत आना, कुछ भी हो जाए मुड़ के मत आना. अब क्या है, हमें पढ़ाया ऐसे गया है. हो सकता है ये पार्टली सही है, बट इसके आसपास की कुछ भी चीज़ें हमें बताई नहीं गई. धर्म नहीं सिखाया, बट ये बता दिया कि वहाँ जा रही हो अब बस वापस मत आना. तो अब लड़की कंफ्यूज्ड है, अब वो क्या करेगी? अब वहाँ से तो निकाल दी गई, पेरेंट्स के जा नहीं सकती है, अभी क्या करेगी? सो हमारी बहुत सारी कहानियाँ माइथोलॉजी में सब सिचुएशंस को केटर करती हैं. करेक्ट? देयर इज़ अ द्रौपदी, ओके, देयर इज़ अ राधा, देयर इज़ अ सीता, बट दे आर ऑल इन डिफरेंट युगाज. देयर इज़ अ गार्गी, देयर इज़ अ मैत्री ऑल्सो, वैदिक जो ऋषिकाएँ थी. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो समथिंग if I tell you about Vedic womanhood. वेदों में जिस तरह से शक्ति को represent किया गया है, she is without boundaries. Okay. There is no mold that she has to fit into. कोई mold ही नहीं है. She has the choice. स्वयंवर क्या था? Choice थी ना. But वो choice हम कैसे कर रहे हैं? सीता का स्वयंवर था, तो सीता माँ ने श्री राम को चुना, उनकी विजडम थी. आज आप में क्या इतनी विजडम है कि आप किसको चुन रहे हो? या आप सिर्फ अट्रैक्ट हो गए, या लस्टफुल फीलिंग्स आ गई. I've even seen cases today where actually girls are in a mess and I asked them, भाई तुमने शादी क्यों की? तो he had a lot of money. Yeah, it's very I common. thought that my life will be very simple. My foreign holidays, my this, my brands. I said, are you kidding me? मतलब तुमने शादी ऐसे करी है, तो देखो ये समझना पड़ेगा. ये नहीं तो this is going to be severe dichotomy in Shakti. Sita Maya also did her Swayamvar, but she had the wisdom to choose Ram. Today, if you want to choose your husband, you have to be wise. You should know what you are getting into. क्योंकि विवाह का मतलब होता है निर्वाह. विवाह इज नॉट एक्सपेक्टेशंस ओनली. एंड आज शादी की 1 महीने बाद लगा कि ये तो कुछ और ही है. पहले ये मुझे फूल देता था, आज मुझे फूल नहीं दे रहा है. Yeah. योर मैरिज इज नॉट दिस. सो वेडिंग इज डिफरेंट, विवाह इज डिफरेंट. अगर आज हम अपनी बच्चियों को बचपन से एम्पावर करना शुरू करते हैं, उनके अंदर की शक्ति बतानी शुरू करते हैं, ना तो वो किसी गलत रिलेशन में पड़ेगी, ना तो वो कहीं अब्यूज़ होगी, ना वो कहीं एक्सप्लॉइट होगी, एंड शी विल गेट मैरिड टू द मोस्ट वंडरफुल पर्सन वेयर टेक्निकली शी फाइंड्स कंप्लीशन एंड नॉट Right. कॉम्पिटिशन. Right. यू नो, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बोल तो देती हूँ, लेकिन कभी कभी बोलकर ऐसा लगता है कि अरे हमें तो लग रहा था आप कुछ ऐसा बोलेंगी कि दूसरे की गलती है. लेकिन मैं जब बोलती हूँ तो मैं स्पिरिचुअल ऐसा समझाती हूँ कि एवरीथिंग कम, द बक स्टॉप्स ऑन यू. Yeah. आपके ऊपर है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप किसी को नहीं दोष दे सकते हो. तो जब आप स्वयं में चेंज लाते हो, जब आप खुद में चेंज लाते हो, आपका पूरा ब्रह्मांड, आई एम टेलिंग यू, एवरीथिंग चेंजेस. It starts from you being a mother. The mother to yourself. First you need to mother yourself. You can't be harsh to yourself. खाना नहीं खाया, पूरा पूरा दिन काम कर रहे हैं, खाना नहीं खाया, अपना ख्याल तो रखना पड़ेगा. हर फेज़ में अपना ख्याल रखना पड़ेगा. गर्भ संस्कारी इसीलिए था
कि the moment the thought of conception comes in a woman, I say, are you prepared for this? If you're not prepared, तो मत करो बच्चा. Even if your biological clock is ticking, don't worry about it. तो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली तुम्हें प्रिपेयर होना चाहिए. तुम्हारे वूम्ब में वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कार्मिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए. नहीं तो तुम्हारे फीटस में, तुम्हारे एम्ब्रियो में, तुम्हारे बच्चे में तुम्हारे सारे वो गलत कार्मिक पैटर्न्स और इमोशनल वाइसेस आ जाएंगे जो वहाँ पर भरे हुए हैं. सो गर्भ संस्कार वॉज ऑल्सो ट्रेनिंग अ वुमन with her thoughts and feelings and habits. So today आज आप अगर डॉक्टर के पास जाओ तो गायनोकोलॉजिस्ट बोलती है अच्छा ठीक है आप बच्चा प्लान कर रहे हो, सिगरेट छोड़ दो, थोड़े टाइम के लिए अल्कोहल छोड़ दो. इतना तो दिमाग उनमें भी है. हाँ राइट. लेकिन स्पिरिचुअली तो उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना. करेक्ट. क्योंकि कामिक इम्प्रिंट्स बन चुके हैं. इतना इम्प्रेशन है हमारे वूम्ब में. वो गोल्डन वूम्ब क्या, वो ब्लैक वूम्ब बन चुका है. एनर्जीज आर ब्लॉक्ड इन मूलाधार चक्र. सो ये नीचे के चक्र ना खुले होने चाहिए फॉर विमेन एंड गर्ल्स. यहाँ से हमारी शक्ति ऊपर निकलती है. सो बेसिकली वुमेन जस्ट लिसन. इट्स इजी ना कि आप किसी और को ब्लेम कर दो, सारा खेल ही वहाँ खत्म होता है. मेरी तो गलती नहीं है, मैं तो विक्टिम हूँ, गलती तो उसकी है. बट नो, what you're saying is making a lot of sense. मत करो ब्लेम. मत अपनी एनर्जी को ड्रेन करो. निमित्त सदा निर्दोष. I say this again and again and I want to say निमित्त सदा निर्दोष. कोई आपके जीवन में अगर माध्यम बन के आया है, आपको परेशान कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, वो निर्दोष है. वो आपको कुछ रिमाइंड करा रहा है कि आपके, इट्स लाइक सेइंग कि आज मैं निमित्त बनी और आपको मैंने कुछ ऐसा बोल दिया कि आपको गुस्सा आ गया एकदम. करेक्ट. निमित्त सदा निर्दोष बोलना, मुझे अपने मन में बोलना. बिकॉज आई जस्ट केम इन योर लाइफ टू रिमाइंड यू कि छवि अभी भी इतना गुस्सा बाकी है तुम्हारे अंदर, अभी भी इतना रिएक्ट कर रही हो. राइट. पीपल कम इन आवर लाइव्स, कार्मिक रिलेशनशिप्स, स्पेशली द क्लोज्ड वंस, जो आपके माँ बाप, बच्चे, हस्बैंड, ये सब आपके जीवन के कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं. ये आपको आपके जीवन में वो सिखाने आते हैं जो आप भूल चुके हो. मुझे तो बहुत कुछ याद आ गया है आज आपकी बातें सुन के. इट्स सो नाइस टू टॉक टू यू कि मैं आपके साथ 10 घंटे यहीं पे मतलब पूरे महीने का पॉडकास्ट आज शूट कर सकती हूँ. थैंक यू. बट आई वांट टू आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन. डू यू थिंक देयर इज अ न्यू एरा ऑफ फेमिनिन लीडरशिप ऑन द राइज? एंड इफ यस, देन हाउ कैन वी नर्चर इट? आई थिंक शक्ति इज राइजिंग. और अगर आप इसको प्रकृति में देखो ना, क्योंकि पुरुष और प्रकृति दो एस्पेक्ट्स हैं, शिव एंड शक्ति. प्रकृति को देखो कितना अनरेस्ट में है, कैसे मौसम बदल रहा है, क्या क्या हो रहा है. ये प्रकृति का अनरेस्ट दिखा रहा है. इसका मतलब कुछ हुआ है बहुत सालों से, बहुत सालों से, जिसने प्रकृति को डिस्टर्ब किया है. ऐसे ही आप घर में देखो, कुछ हुआ है बहुत समय से जिसने घर की महिला को, शक्ति को डिस्टर्ब किया है. सो शी इज़ नॉट एट हर बेस्ट. बाहर भी मदर नेचर इज़ नॉट एट हर बेस्ट, अंदर भी आवर मदर्स एंड वी एज मदर्स आर नॉट एट आवर बेस्ट. लेट्स अज्यूम दैट. अब करना क्या है? करना ये है, रिस्टोर करना है इसको. शोषण बंद करना है. अब मैं अगर बोलूँ आपको कि प्रकृति का शोषण बंद करो, इनफ, एक्सप्लॉइट हो गया, नाउ शी इज़ गिविंग इट टू अस बैक. सेम वे सबसे पहले आप अपना शोषण बंद करो. स्टॉप बीइंग अ विक्टिम. हो गया, जस्ट लर्न टू फ्लो. गंगा माँ, गंगोत्री के पास जब आप बैठते हो ना, तो गंगा से क्या इंस्पिरेशन लेके आते हो? माँ क्यों बोलते हैं हर नदी को? बैठो और सिर्फ देखो. इफ आई टेल यू टू फोकस ऑन वन वेव, you cannot even see it for a microsecond, you know. You just sit there and you observe that ये माँ गंगा कितना छल 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 बहती जा रही हैं. कोई बड़े पत्थर आ रहे हैं, कोई छोटे रोड़े आ रहे हैं. शी इज़ विथ हर ओरिजिनल नेचर, वो अपना धर्म कर रही हैं. सेम वे हमें अपने आप को रिस्टोर करना पड़ेगा. सो शक्ति इज़ राइजिंग, वेदर इट्स द boardrooms or it's any genre if you see, anywhere if you see in the world, the woman is powerful. She is rising. Now the question is she being accepted so well? It's a man's world. ऐसा कुछ भी नहीं है. It's just because we lost our place and we thought that, we were confused about our roles.
शक्ति इज राइजिंग एंड आई थिंक हमें सबसे पहले अपना शोषण बंद करना पड़ेगा. थैंक यू सो मच. एंड अपना शोषण बंद करना पड़ेगा इज़ अ वंडरफुल स्टेटमेंट टू क्लोज दिस पॉडकास्ट ऑन. आई डोंट हैव टू मच टू से एज माई क्लोजिंग थाट्स बिकॉज मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं. मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपने जो बोली हैं वो एकदम जैसे हिट करती हैं ना करेक्ट पॉइंट पर, वो वहाँ पर जाकर मुझे हिट करी हैं. एंड आई थिंक आप लोगों को भी ऐसा ही फील हुआ होगा. व्हाट डिड यू फील आफ्टर लिसनिंग टू दिस कॉन्वर्सेशन एज अ वुमन, एज अ मैन, as a human? Please put that down in the comments and let me know your thoughts about it. Let's nurture the feminine energy Yes. which is rising. Yes, yes, absolutely. Let's nurture, let's protect, and let's just, that golden light we Yeah. all have. Let's just throw our gold dust around. Thank you so much, Avi. It was And such a pleasure. let's start with ourselves. Yeah. Thank you so much Thank for coming you. on my Thank you so podcast. much. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and share and subscribe. You're watching Candid Confessions with Chavi. This is both of us signing out. Love and peace from us to you.